So in this recurrence solving method, iteration method, simply we will expand the recurrence and express the expansion as a summation by plugging the recurrence back into itself until you see the pattern and finally evaluate the summation. तो बेसिकली इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो भी हमको रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, then we need to convert that recurrence relation in terms of n. अगर इस फॉर्म में है, वो रिकर्जन की फॉर्म में आ रहा है, तो उसमें से रिकर्जन को रिमूव करना है और उसको n की फॉर्म में लाना है. तो हम एक्सपेंशन करेंगे, लाइक हमको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, लाइक टी ऑफ एन इक्वल टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, तो हमको क्या करना है, उसमें से हमको इसको हटाना है, इसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन को. लाइक जैसे इस फॉर्म में गिवन है टी ऑफ एन इक्वल टी ऑफ एन माइनस वन प्लस इट इज लेट्स सपोज इट इज एन. ओके, तो इस फॉर्म में अगर है हमारे पास, तो फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये रिकर्जन का, इस पार्ट को हटाएंगे और वी विल गेट दिस रिकरेंस इन टर्म्स ऑफ एन. ओके, इन टर्म्स ऑफ एन के टर्म में लाएंगे, सो दैट वी कैन find out the direct relationship in between this function and that particular value of n. Okay, so just a minute. So we are having these formulas which can be used in the case of iteration method when we will expand the that recurrence. So it may be possible कि इस फॉर्म में वो आ जाए, then you all people must know about these formulas. Okay, so these are some formulas, like it is summation of first n natural numbers, summation of k equal 1 to n k, it will be 1 plus 2 plus 3, like up to n, it will be n into n plus 1 by 2, and these are the rest of the formulas. It is a summation of n elements of geometric series. It is other formula. It is the summation of infinity geometric series. So you can use these formulas, and some more formulas are here whenever required. Okay, so let's take an example how the recurrence equation or recurrence relations are solved using iteration method. Okay, so let's take this example. Let's suppose we are given this ak equal ak minus 1 plus 2. Okay, this is the recurrence relation. It is defined on the lower terms of input k, and we are given the value of base condition, that is a not equal 1. तो अब करना क्या है, ये जो हमारे को वैल्यू गिवन है a k माइनस वन, सिंपली वी विल एक्सपैंड दिस वैल्यू. एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a k माइनस वन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. और हम क्या करेंगे, वी विल सी द पैटर्न किस तरह का बन रहा है. लाइक सपोज द वैल्यू वी आर पुटिंग हियर 1. ओके, सो द वैल्यू ऑफ a1 विल बी, ये तो यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, a0 प्लस 2. ओके, द वैल्यू ऑफ a1 इक्वल 1 प्लस 2, वैल्यू ऑफ a0 इक्वल 1, वैल्यू ऑफ a1 इक्वल 1 प्लस 2. नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a2 बाय यूजिंग दीज प्रीवियस वैल्यूज. So let's put k equal to here. So a2 equal a2 minus 1, that is a1 plus 2, like this. So a1 plus 2, we know the value of a1, it is 1 plus 2. 1 plus 2 plus 2, it is 1 plus 2 into 2. Next, a3, the same like way we can calculate the value of a3. The value of a3 will be 1 plus 3 into 2. एंड द वैल्यू ऑफ a4 विल बी लाइक दिस 1 प्लस 4 into 2. जो भी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इसको एक पैटर्न की फॉर्म में अरेंज करना है, जिससे क्या हमको वो पैटर्न पता हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है या उसका समेशन कैसे करना है. ठीक है, तो अगर इस पूरे रिलेशन को आप देखो तो ये किस फॉर्म में आ रहा है. You can see here, like it is in the it is like a fashion a of n equal 1 plus n into 2, इस फॉर्म में आ रहा है. तो we can solve this a of n equal 1 plus 2n. So basically जो method हुआ ना, it is like a brute force method, means we are checking each and every possibility, and after we will do the summation operation.
and the summation operation we will get the recurrence relation in terms of n. Okay, so this can be a simplest example. Let's take another example. Let's suppose we are given this recurrence relation and we need to solve this using the iteration method. So t of n equal c plus tn by 2. आज जब ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा अभी ड्यूरिंग द क्लास एंड यू नीड टू सॉल्व एंड शो मी द आंसर. ओके, सो लेट्स सपोज यू आर गिवन दिस. अच्छा, तो इस रिकरेंस रिलेशन में हम क्या कर सकते हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए? तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू हियर, वी simply expand this one, or we can replace this value from this recurrence. So let's suppose we can find out the value for n, sorry, n equal, it is n equal n by 2 के लिए क्या हो जाएगा ये, t of n by 2 equal c plus t of n by 4. Okay, so we can put this value here. So you will get t of n equal c plus, इसकी वैल्यू क्या है, c plus t of n by 4. Now we are having the expression like this, t of n equal, we can write it like t of sorry, it is 2c plus t of n by 4. अब क्या करना है, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मीन इस वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ t n by 4 by putting n equal n by 4. So we'll put this n equal n by 4 into main recurrence and we can get from there t of n by 4 equal c plus t of n by 8. Okay, now we can put this value from here to, okay, from here to here. So then we will get t of n equal, it will be 2c plus c plus t of n by 8. ओके, तो इसी फॉर्म में इसको हम एक्सपेंड करते जाएंगे. तो ये रिकरेंस था हमारे पास. तो हमने क्या किया है, इसमें जो स्मॉलर ये रिकर्जन के जो फॉर्म है इसको रिप्लेस किया विद द वैल्यूज. तो हमको क्या मिला, लाइक यू कैन सी हियर, जैसे मैंने थोड़ा बहुत करके बताया अभी. हमने क्या किया, इनिशियली टी ऑफ एन बाई 2 से रिप्लेस किया, ये मिल गया. देन टी ऑफ एन बाई 4 को रिप्लेस किया, ये मिल गया. तो यू कैन सी हियर एक पैटर्न इसमें आ रहा है, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, और ये यहाँ तक एन बाई 8 तक हमने किया था प्लस प्लस प्लस. अच्छा, इस तरह के रिकरेंस रिलेशंस होते हैं तो उनमें एक बेस कंडीशन होती है. ओके, और हमको बेस कंडीशन की वैल्यू पता होती है. बट सपोज अज्यूम दैट द बेस कंडीशन फॉर दिस एक्सप्रेशन is means the base value, like when we are calculating the factorial of a number. तो फैक्टोरियल में क्या होता है, बेस वैल्यू होती है फैक्टोरियल ऑफ 1, जिसकी वैल्यू हमको पता होती है. ठीक है, तो उस बेस वैल्यू तक अब ये सब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं. ये एन की वैल्यू कंटिन्यूसली टू रेज टू पावर सम वैल्यू से डिवाइड होती जा रही है. लेट सपोज ith जो टर्म होगी, दिस इज द ith टर्म. ith टर्म मीन्स एट द ith इटरेशन. तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, हमारा जो रिकर्जन है स्मॉलर वैल्यू का, इट विल बी टू रेज टू पावर आई टी एन बाई टू रेज टू पावर आई. ओके, तो अब हमको क्या करना है, वी नो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस, इस द वैल्यू ऑफ एन बाई टू रेज टू पावर आई. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी, it will be 1. So in the ith step n by 2 raised to power I equal 1. So ये 2 इधर आ गया, means we get n equal to raised to power I, and by the property of log it will retain I here. The 2 left side में आएगा, it will go at the base of this n. By the property of log I equal log base to n. So in this way we can calculate the value of I, कि कब ये ऐसा हो रहा है, कब जाके इस तरीके से होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर I की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली. एक मिनट रुको, आई थिंक अ लिटिल करेक्शन इज हियर.
बेसिकली ये टूरिस्ट पावर आई नहीं है, ये बाई मिस्टेक ये लिख गया यहाँ पे। ओके, तो इग्नोर दिस वैल्यू, टूरिस्ट पावर आई टी एन बाई टू, तो ये टूरिस्ट पावर आई नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, मीन्स कौन से इटरेशन पे जाके एन बाई टूरिस्ट पावर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो जब हमको ये पता पड़ गया तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी टी ऑफ वन, लाइक इट इज टी ऑफ वन। हमको पता पड़ गया कि इसकी वैल्यू टी ऑफ वन हो जाएगी, ठीक है। टी ऑफ वन की वैल्यू हमको पता है वो वन है। इससे पहले हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, these values are I times. Okay, so we can get from here c into I plus t of 1. We know the value of t of 1, it is 1, and the value of I ये हमने यहाँ find out की थी, it is log n. So we are getting here c log n plus t of 1. So finally, if when we are representing it in terms of notation, then we can write it t of n equal theta of log n. अच्छा, रैंडमली अगर आप चाहो तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग टी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ लॉग एन और थीटा ऑफ लॉग एन, बिकॉज व्हेन वी आर डिनोटिंग an expression using theta notation, then we are denoting both the bounds, lower and upper. Okay, and when explicitly you are asked to find out a particular bound, then you can show that by that, or we can show it by o of log n, because normally we are analyzing the algorithms in this course, and we are analyzing a worst case time complexity. Okay, let's take another example. This is another example. We सर need एक to डाउट solve. है हाँ पूछो। सर। आपने जहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग बाय लॉग किया है, तो हम्म। इट इज दैट लॉग आई इज इक्वल्स टू लॉग 2n कि नो 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 सिर्फ नो, आई ये इक्वल टू लॉग बेस 2n? मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। बेसिकली ये क्या है देखो, ये लॉग आई नहीं है, it is like this, n by 2 raised to power I equal 1, so it will be n equal 2 raised to power I. Okay, so ये I तो यहीं पे रह जाएगा इधर, ठीक। like how can we can write this, I equal log base to n, so this is the value of, sorry, दिस इज द वैल्यू ऑफ I इक्वल log base to n, ये अलग है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओके ये सर, थैंक यू। है ना, ये थोड़ा सा रह गया यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ आई, बेसिकली हम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि कौन सी आई इटरेशन की वैल्यू क्या है, जिस टाइम पे जाके ये एन बाई टू रिस्ट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये भी यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, इट इज़ नॉट टू रिस्ट, ये कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं स्लाइड दूंगा तब इसको करेक्ट कर दूंगा उसमें। तो मिनट, ओके, so let's come to this iteration, सॉरी दिस रिकरेंस रिलेशन। ये गिवन है वो वैसा ही है जैसा पहले वाला था, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो एनीबडी कैन टेल मी this recurrence relation, what can be the solution for this recurrence relation? ये हमने पहले भी सॉल्व किया एक दो बार। बेसिकली इट इज़ द रिकरेंस रिलेशन फॉर मोलसॉट एल्गोरिथम। ओके, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। ये जो वैल्यू है स्मॉलर वैल्यू वाली रिकरेंस की, इसको रिप्लेस करते जाएंगे, और जब तक करेंगे जब तक वो पैटर्न नहीं मिल जाता, और उसको इस तरह से अरेंज करेंगे। सो वी विल गेट लाइक दिस। इनिशियल हमने क्या किया, टी ऑफ एन बाई टू को रिप्लेस किया, तो टी ऑफ एन बाई टू हो गया एन बाई, ये वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, मेन रिकरेंस से। तो टी ऑफ एन बाई टू इक्वल एन बाई टू प्लस टू टी एन बाई फोर। सो आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू वी विल रिप्लेस किया, एन प्लस टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। आफ्टर दैट हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, ये टू से टू कैंसिल, तो एन प्लस टू इंटू टू, फोर टी एन बाई फोर। नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी एन बाई फोर। Okay, and we will replace that value here, so we will get n plus ये value है t n by 4 की, n plus n it is 8 t n by 8। ये expand होता जा रहा है continuously, ठीक है। और ये n की वैल्यू, जो ये वाली जो वैल्यू है रिकर्जन की, ये फर्दर रिड्यूस होती जा रही है by 2 power something। so
at the ith iteration we can assume it like it is expanding like 2 raised to power, it will be 2 raised to power I t n by 2 raised to power I. तो ये लास्ट इटरेशन होगा, मीन्स ये उस तरह से है जैसे मर्ज सॉर्ट में हम लिस्ट को डिवाइड करते जा रहे हैं, और जब लिस्ट को हाफ हाफ में डिवाइड करते जाएंगे तो एट द ith इटरेशन वी आर अज्यूमिंग कि जो लिस्ट है वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स की लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो दिस इज दैट सिचुएशन, मीन्स आफ्टर दैट आवर प्रॉब्लम इज अनडिविजिबल. जब वन में वन एलिमेंट की वो लिस्ट कंडीशन में पहुंच गई तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो ये कंटिन्यूसली n प्लस एन प्लस एन प्लस एन के फॉर्म्स में आ रहा है, i टाइम्स आ रहा है, सो वी कैन राइट इट i इंटू एन एंड दिस इज द लास्ट टर्म. एंड फ्रॉम हियर जब ये ith टर्म, ये ith इटरेशन जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, so we can put it like n by in the ith step n by 2 raised to power I equal 1, so n equal 2 raised to power I. okay, so वैसे ही log की प्रॉपर्टीज है, ये log I नहीं है, by the property of log I equal log base to n, and we'll put this value here. जब ये तो t of 1 हो गया, so n by 2 raised to power I, so we can write it t of 1, it is I into n plus 2 raised to power I t of 1. यहाँ हम पुट कर देंगे I की वैल्यू, it will be n log n प्लस ये 2 raised to power I, तो हम अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं इसको, so we can get from here 2 raised to power I, okay, equal 2 raised to power log base to n. ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है तो वी कैन रिप्लेस दिस n विद दिस 2. ओके, so we can write it like 2 raised to power n log base to 2, और ये सेम बेस हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1. सो विल गेट हियर 2 raised to power, सॉरी ये 2 raised to power n नहीं, ये इट विल बी, ये n और ये 2 रिप्लेस हो जाएंगे, इट विल बी n raised to power log base to 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1. सो विल गेट फ्रॉम हियर 2 raised to power I इक्वल n. ओके, so this 2 raised to power I is n, and t1 की वैल्यू we know that it is 1. so dominant term दोनों में we are having n and we are having n log n, so the dominant term in this is n log n. so the complexity of this recurrence relation will be theta of n log n. Any doubt in this? The base of theta is 2 in this in the answer, right? Mm-hmm. We can randomly use theta or O notation. Basically, if we are using theta, then we are showing here that we are denoting both the bounds, means upper bound and lower bound. And if we are using only O notation, big O notation, then we are showing that it is the only upper bound. So अभी यहाँ पर what is the base of the logarithm, like log function? log function in it the is 2. answer. ये 2 है ना यहाँ पे. Okay, in the answer also, हाँ, right? in the answer also. Not natural. हम क्या पुट कर रहे हैं, I की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखो इधर ये I की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो I की वैल्यू क्या है, log base to n. और अगर हमको कभी एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो फॉर सिंपलिसिटी हम कुछ चीज़ों को वहाँ इग्नोर कर सकते हैं, लाइक जैसे कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर करते हैं, हम n के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स आएंगे इसमें, इन दोज एग्जांपल्स जस्ट वी आर doing the summation of that series, and the series it is the geometric series, तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इन दैट केस इन सम केसेस वी विल अज्यूम दैट इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज, बिकॉज उसका जो समेशन होता है इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज का वो होता है इट इज 1 by 1 minus r. ओके, तो वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है वहाँ पे सॉल्व करना, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोर्शन का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि लाइक लेट सपोज इट इज दिस, इट इज दिस. ओके, So ठीक है. one हाँ. more thing, sir. One more thing. So we are assuming in ith step n by 2I is equal to n by 2 power I is equal to 1. How are we assuming that? How are we concluding that? This is my first class, sir, so that is why I'm a little confused. Okay, no problem. Basically, let's suppose we are analyzing the merge-sort algorithm. Okay, so the concept is merge-sort algorithm. There is a first step, that is a divide step. In the divide step, we will continuously divide our input list into half. Yes. कब तक करेंगे, until the list will be divided or list will reach in to an undivisible form.
अनडिविजिबल फॉर्म क्या होगा, मीन्स वी आर हैविंग ए लिस्ट ऑफ वन एलिमेंट ओनली, ठीक है. इट इज द सेम केस विद द बाइनरी सर्च आल्सो. It can be the same case for the quick sort also. Means all the problems which are based on divide and conquer paradigm, when we are dividing the list, then there will be a case, or we can say the base case, that after that the division of that particular list is not possible. Okay, so here ये जो expression है ना, this expression is the expression for merge set algorithm. When we'll do analyze the merge set algorithm, तब समझ में आ जाएगा कि expression की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ith स्टेप में जाके इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. लाइक हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये ith स्टेप है, तो ith स्टेप में ये n/2 की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि हमको क्या करना है, रिकर्जन को रिमूव करना है इक्वेशन में से. ओके, तो रिकर्जन कैसे रिमूव करेंगे, वी विल गो टू द बेस केस जिसकी वैल्यू हमको पता है. ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट की बात करें, इस एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हमको कई बार गिवन भी नहीं है, लाइक आपको गिवन नहीं है कि इसका बेस केस क्या है, देन वी कैन अज्यूम दैट इट द वैल्यू ऑफ द बेस केस इक्वल 1. मीन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो सीरीज स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो इसलिए हमने अज्यूम किया कि n/2 की वैल्यू ith इटरेशन में 1 हो जाएगी, सो इट विल बी t of 1, और n/2 से हमने यहाँ पर i की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नाउ क्लियर? ओके, so let's come to the next question. This is the next one. थोड़ा सा complicated है, but है वही चीज. Here we are given the base case t of 1 equal 1, and the expression is t of n equal 8t n/2 plus n square. Okay, तो करना क्या है, we will expand this expression, or we will remove the lowest order term from the expression and convert that in the terms of n. तो यहाँ क्या कर सकते हैं, we can find out the value of टी एन बाई टू, और वो एन बाई टू की टी एन बाई टू की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं. तो द वैल्यू ऑफ टी एन बाई टू विल बी टी ऑफ एन बाई टू इक्वल 8t n/4 प्लस n बाई टू का स्क्वायर. ओके, तो आफ्टर गेटिंग दैट वैल्यू फ्रॉम हियर, वी विल रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ टी एन बाई टू इन दिस सेकेंड स्टेप. so it will be 8 multiply 8t n/2 square, और या n/2 4, अच्छा n/4 plus n/2 raised to power 2. So after solving this, we will get like this: n square plus 8 square t n/2 square plus 8 n by n square by 4. और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, then we will get here n square plus 2n square plus 8 square t n/2 square. तो फर्दर अब ये हो गया t n/4 के फॉर्म में आ गया, मीन्स और रिड्यूस हो गया. और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, या ये मालूम करने के लिए कि पैटर्न कैसा है, we'll just find out the value of t n/4 from this expression and we'll put that value here. So by putting that value, we'll get an expression like this: n square plus 2n square plus 2 square n square and so on. और फर्दर अगर थोड़ा सा इसको हम आगे यहाँ देखते हैं, then we will get here n square plus 2n square plus 2 square n square plus 2 cube n square plus 2 का 4 n square. तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ रहा है, the expression is like, जब ith iteration में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, that will be वो मतलब किस फॉर्म में आएगा, that will be, तो बता सकता है? 2 to the power I minus 1 n square. हम ith iteration में अज्यूम कर रहे हैं, तो उसको ith की टर्म में करेंगे, I minus 1 नहीं होगा वो, ये तो जाएगा n/2 raised to power I. तो यहाँ से इसको तो हम अज्यूम कर लेंगे, ओके, इन द ith iteration the value of this n/2 raised to power I will be equal to 1. वो भी इसलिए बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू, ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, कि कौन सी आई इटरेशन में जाके ऐसा होगा. 2i t n/2i. हाँ 2i t n/2i. ओके, तो दिस मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को फिर फर्दर यहाँ पे हम पुट करेंगे और फिर इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करेंगे. तो सिंपलेस्ट लॉजिक ऑफ इटरेशन मेथड इज दिस: simplify the expression and remove the recursion term from the expression, and after removing the recursion term, you will get a sequence of series, okay, or sequence of terms, and find out the pattern from there, and after finding the pattern, just solve that pattern. Okay, so अब ये
लास्ट टर्म हो गई 8 रेज टू पावर log n, और इससे पहले वाली टर्म की हो गई, दिस इज वी कैन राइट दिस इन द समेशन फॉर्म k इक्वल 0 टू log n माइनस 1 टू रेज पावर k n स्क्वायर, और ये इट इज 8 रेज पावर log n. ठीक है, तो ये तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वी कैन राइट इट 8 i के 2 रेज टू पावर 3 log n, or we can write it n will come here in place of 8 या to the power 3 will go, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको जैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये वाला हमारे पास है. इट इज बेसिकली 8 रेज टू पावर log n. तो इसका बेस है 2, ये log की प्रॉपर्टी से दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, log ऑफ 2 8. ओके, और n रेज टू पावर log इट विल बी 2 रेज टू पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, मीन्स n रेज टू पावर 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर n रेज पावर 3. ये आ गया, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने कुछ फॉर्मूले दिखाए थे पहले. समीशन ऑफ k इक्वल 0 टू log n माइनस 1 टू k टू रेज पावर k, इट विल बी 2 रेज टू पावर log n माइनस 1. ठीक है, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन इट विल कम इन टर्म्स ऑफ n और n स्क्वायर, अलग अलग इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो. ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस simplified form, and in this simplified form we can find out the dominant term, it is n raised power 3. So the complexity of this expression is eta of n cube.